ویلکم بیک ٹو سب سویرے پاکستان. اور ہم نے اب کرنی ہے اچھی گفتگو, اور اچھی گفتگو جو ہے وہ کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس فن سے ناآشنا ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی تاثر نہیں چھوڑتی, اور ماہرین نفسیات نے گفتگو کے فن پر تحقیق اب کی ہے حمزہ, اور ایسی رکاوٹوں کی نشاندہی بھی کی ہے جو معنی خیز تعلق میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں. یہی نہیں ہے, انہوں نے ان مشکلات کو ہٹانے پر بھی تحقیق کی ہے, گفتگو کو بہتر بنانے کی جانب. پہلا قدم تو یہ ہے کہ سوال پوچھنے کی عادت تو بنائیں, پہلے عادت بنائیں گے پھر اچھے سوال پوچھنا بھی شروع کر دیں. بالکل ایسے یہ زیادہ تر لوگ جو وہ سوال کرنے کے عمل کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہوتے, تو ہمیں اپنے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن ہم یہی جو چیزیں ہیں دوسروں پر رکھ کر نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن ماہرین جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کو کہنا ہے کہ عام طور پر کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز سوچنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اس شخص سے خود پوچھ لیں اس بارے میں. بالکل ایسے ہی. اچھا, بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ ہمیں کتنی گفتگو کرنی چاہیے, اور اگلا بور تو نہیں ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ہمیں کیسے سمجھ لگے گی. دوسرا یہ کہ کیا ہم ہی صرف امپورٹنٹ ہیں اس گفتگو کے اندر, یا کچھ دوسرے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی ان کی سن لیں, شاید ہم اس سے کچھ سیکھ جائیں. اور کب سننا بہت زیادہ ضروری ہے, کیسے لوگ ہیں جن کو خاموشی سے سن لینا ان کے ساتھ تکرار کرنے سے, بحث کرنے سے زیادہ بہتر ہے, یہ چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہیں. بالکل, ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر امرین اقبال موجود ہیں. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. ڈاکٹر امرین, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے اگر گفتگو کرنی ہے, اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم نے اس سائلنس کو بریک کیسے کرنا ہے؟ ابھی وی ور ٹاکنگ ان دی بریک دی سیم ایشو. اور اچھا, اس میں میں تھوڑا سا ذرا سائنٹیفکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی دو تین چیزوں, ایک تو ہماری لے مین لینگویج میں ہوتی ہے, اس میں ہم تھوڑا سا جب کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے, دو طرح کی ہوتی ہے, انٹر کمیونیکیشن اینڈ انٹرا کمیونیکیشن. انٹرا کمیونیکیشن ہوتا ہے وچ یو ٹاک سیلف ٹاکنگ, جو آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, کہ جیسے فار ایگزامپل بریک میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد آپ نے بولنا ہے, میں نے بولنا ہے, یو ور ڈسکسنگ, یو ور آرگنائزنگ, یو ور پلاننگ, یہ تو ہو گئی آپ کی. اور ایک ہوتا ہے انٹر کمیونیکیشن وچ از ود دی ادر پرسن اور ود اے گروپ آف پیپل. اب جب بات ہم یہاں پر کریں گے انٹرا کمیونیکیشن کی, کہ جو کہ انٹر کمیونیکیشن جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہم زیادہ تر انٹر اور انٹرا کو مکس کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ بات تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہم اپنے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو سب سے پہلے انٹر کمیونیکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. جب ہم انٹر کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت, تو بات چیت ہمیشہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے, جو میں کچھ ظاہر ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی کہتی ہے, لیکن جو ہمارے ہاں جنرل جو ہے, ہم لوگ سائلنس بریک نہیں کرتے. دا ویری فرسٹ رول از دیٹ وی ویٹ دیٹ دا نیکسٹ پرسن شوڈ کم اینڈ ٹاک ٹو اس. یو سی, ایک ہمارے ایگو میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کیوں بات کریں. دا مومنٹ یو ہیو سین کہ آئی انٹرڈ آن دا سیٹ, میں نے کہا ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو, میں نے ہیلو ہائی کیا, ایک وارم اپ, اس کو ہم کہتے ہیں وارم اپ سیشن, از اے وارم اپ ٹاک. جیسے ہم جاگنگ کرتے ہیں تو پہلے ہم وارم اپ ہوتے ہیں, بالکل ایسے. تو وارم اپ جو ہے وہ لائٹر ٹون میں سٹارٹ اگلے کو کمفرٹیبل کریں, پہلے تو کمفرٹیبل کریں, ریپو بلڈ اپ کریں, اس کو ہم کہتے ہیں ریپو بلڈ اپ کرنا, کہ آپ اگلے سے کنیکٹ تو پہلے کریں. آپ تبھی ایک راستہ, یا جیسے کہتے ہیں نا برج کو, یا ایک اس کو عبور کرتے ہیں جب آپ پہلے کنیکٹ کرتے ہیں. وہ کنیکشن از ویری مچ امپورٹنٹ. تو اس میں سب سے پہلے تو سائلنس کو بریک کرنے کے لیے, اسپیشلی جب آپ کسی ایسے گیدرنگ میں جاتے ہیں یا کسی ایسے شخص سے گفتگو کرتے ہیں who is a stranger to you, یا آپ جس سے پہلے ملے نہ ہو, تو don't wait that the next person should come to you and talk. You take an initiative, آپ ابتدا کریے, آپ سائلنس بریک کریے, یہ ایک سب سے پہلی چیز ہے. اچھا, جب ہم سائلنس بریک کرتے ہیں تو سیکنڈ جو چیز ہمیں تھوڑی ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اگلے کے بارے میں پوچھیں. آپ کہاں سے آئے, جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ ہیں, میں نے پوچھا کیا چل رہا ہے آج کل, کیسے چل رہا ہے, سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے, اینڈ آل دیٹ. یو سی, لائٹر. ہمیں کبھی بھی ہارڈ کانورسیشن سے, ہمیں کبھی بھی جس کو کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی آن اے لائٹر ٹون سو دیٹ دا نیکسٹ پرسن شوڈ بی کمفرٹیبل ود یو. اچھا, جب آپ نے, اب میں اس کو تھوڑا سا ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا لے کر چلوں گی, کہ سائلنس بریک ہوا, وارم اپ ہوا, کنیکشن ہوا, اس کے بعد آپ نے لائٹر ٹون میں آپ نے بات کا, گفتگو کا آغاز کیا, اسپیشلی ود دا اسٹرینجرز, کیونکہ جو اپنے یار دوست بیلی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ ویسے نیچرل, آپ آلریڈی آپ کا کنیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے, مدے پہ آتے ہیں, کم ٹو دا پوائنٹ, آپ کہتے ہیں کم ٹو دا پوائنٹ. سو تھرڈ جو مجھے لگتا ہے اس میں بڑی ضروری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشچننگ کی عادت نہیں ڈالے گی, جو آپ نے ابھی کہا شروع میں اپنے انٹرو میں. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے سم ویئر دیٹ یو آر ناٹ اوبیڈینٹ,
you are not courteous, if you're going to say no, or if you are going to question. आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उसमें questioning की बहुत आदत होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है. That means questioning adds to your knowledge. और इंसानी फितरत में है, बच्चा इसलिए कर रहा है. सवाल करो, गौर व फिक्र करो. होली कुरान में गौर व फिक्र करो और सवाल करो. कभी भी सवाल करने को स्नब नहीं करना चाहिए. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, क्लासेस के अंदर यू माइट हैव सीन, जब आप भी स्कूल में होंगे, कुछ टीचर्स इनकरेज करते हैं क्वेश्चनिंग को, कुछ टीचर्स अनॉय होते हैं, स्नब करते हैं. तो सवाल और गैर जरूरी सवाल में भी यहाँ पर एक फर्क कर लें. लेकिन बच्चे को नहीं पता ना कि जरूरी और गैर जरूरी सवाल कौन सा है. द मोमेंट यू ग्रो अप, लेकिन क्वेश्चनिंग की आदत तो डाली. एग्जैक्टली. फिर ग्रेजुअली जब आप ग्रो करते हैं, मच्योर होते हैं, तो देन यू गेट टू नो, पता लग जाएगा कि ये व्हाट इज द रेलेवेंट क्वेश्चनिंग एंड व्हाट इज द इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग. यू सी, लेकिन सवाल करने की आदत हो. अब सवाल में बड़ा ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेट पे आई, मैं थोड़ा सा ना चीज़ों को जो एग्जांपल्स देख के कोट करती हूँ. मैं आई सेट पर और मैंने आपसे पूछा कि हमजा अच्छा आप पहले कौन से चैनल पे थे, आपसे इकरा पूछा कि कैसा चल रहा है और सारा कुछ जो है. अब उसमें अगले से पूछे. हम ज्यादातर बात करते हैं अपने बारे में. वी लाइक टू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स कि अच्छा जी हमें ये, आप कोशिश करें अगले की हॉबीज पूछें. हमारे पास क्लिनिक में भी ऑब्वियसली जब क्लाइंट्स आते हैं विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो हमारा पहले काम होता है रैपो बिल्डअप करना, उन्हें कंफर्टेबल करना, उनके साथ कनेक्ट करना, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है. आप देखेंगे कपल्स के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर क्यों ज्यादातर रिलेशनशिप्स बोरिंग हो जाते हैं विद द टाइम. यू गॉट माय पॉइंट. और विद द फ्रेंड्स, बिकॉज हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता कि अगले का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल कपल्स में मैंने अक्सर देखा है, मियाँ कहता है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बीवी कहती है मुझे देखना ही नहीं पसंद, वो चैनल्स के ऊपर ही होती रहती है. So it has to be somewhere in the middle. You need to explore the interest of each other. आप अगले से सवाल पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, how is your experience about life, आपके hobbies क्या हैं, आप, and in this way you explore the next person. होता क्या है कि हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, हमें मजा ना, हम कहते हैं नहीं हम like minded नहीं है, and then you move away. बिल्कुल ऐसे, ये बंदा हमारे लिए नहीं बना हुआ, ये बंदा हमारे लिए नहीं बना हुआ. ये जो हमारी, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हमारी assumptions होती हैं, ये हमें ब्लॉक कर देती हैं. वी लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल. आपने अक्सर देखा होगा जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जाते हैं, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व सिंस आई स्पेंड सम ऑफ द टाइम इन अब्रॉड एज वेल, व्हाट आई हैव फाउंड दैट स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू फाइंड द सेम कंपनी कि हमारी जबान वाले, हमारे जो क्लास वाले या हमारे ही हों. नेवर एवर डू दैट. ये मैं आपको, ये भी एक गुर है जिसको कहते हैं. ट्राई कि आप जिनको नहीं जानते, जो डिफरेंट कल्चर वाले हैं, क्योंकि लर्निंग आपकी होगी व्हेन यू गेट मोर एक्सपोज्ड, व्हेन यू गेट टू नो द पीपल, व्हेन यू गेट टू नो, उतना ही आप जो है लर्न करते हैं. जी एग्जैक्टली. हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा इसलिए भी कम्युनिकेशन के ऊपर, अगर हम देखें कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बड़ा फ़र्क है. आपने हमजा भी बात की थी कि जी मानी खेज गुफ्तगू होनी चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. होता कि हम डेली लाइफ में घंटा घंटा बात कर लेते हैं, खैर हर टाइम भी नहीं, फ्रेंड्स के साथ आप जब बैठते हैं, बट योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी इफेक्टिव, स्पेशली जब कोई मुद्दा हो, जब कोई लॉजिकल कॉन्वर्सेशन, जब खास टॉपिक हो. आपने देखा होगा अक्सर कहीं कॉन्वर्सेशन हो और अगर कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस या कोई इस तरह हो, तो लोग कहते हैं भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस पे बात नहीं करते. That means we are scared of our emotions. We are scared. At the back of our mind, we are scared of our emotions. डॉक्टर अमरीन, हमें ये बताएं कि हर वक्त सिर्फ बोलना ज़रूरी है या फिर कभी आपको सुन भी लेना चाहिए, और किन लोगों को लाजमी सुन लेना चाहिए? One has to be a very good listener. क्योंकि मैं यहाँ बोलने के लिए बुलाई गई हूँ, इसलिए मैं बोल ज़्यादा रही हूँ, लेकिन हम आपको सुन रहे हैं. Exactly. This is what the anchoring, this is what the moderation, that you throw a question and then you wait for the answer. ये भी वैसे, चूँकि मैं एंकर भी रही हूँ, ये मॉडरेशन भी, तो मैं एंकर्स को हमेशा ये कहती हूँ, आपका काम है you throw a question, then be patient, and then you see give the chance to the others to speak, whether it's the guest या हमारे क्लिनिक की अगर बात हो जाए कि हम जब पूछते हैं तो वी वेट के वो. अच्छा, अब इसमें आपने कहा कि सुनना,
दोनों चीज़ों में बैलेंस होना ज़रूरी है. यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज वेल एज यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर. Okay. अब जहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है और आप चुप करके बैठ के मुंह देख रहे हैं, वो नहीं हो सकता. सो वन हैज़ टू बी रैशनल इन अप्रोच. कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए. डिड आई आस्क यू बिफोर द स्लॉट के मेरे पास टाइम कितना है? मैंने पूछा था मेरे पास कितना टाइम है बोलने के लिए. आपने अक्सर देखा होगा वीडियोपॉलॉजी मोटिवेशनल स्पीकर्स या ये वो बात बहुत लंबी कर देते हैं, च्युइंगम की तरह खींच देते हैं, फिर सिरा नहीं पकड़ा जा रहा होता. पकड़ा उसको सम अप करना, कंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली क्लासेस के अंदर, चूंकि एजुकेशनिस्ट भी हूँ, क्लासेस के अंदर भी चाहिए कि बड़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि बस 25-30 मिनट आधे घंटे के बाद कंसंट्रेशन स्पैन खत्म हो गया है. ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने टॉपिक को भी स्विच करें, उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, उसको बोरिंग ना होने दें. बिल्कुल ऐसे ही, उसको बोरिंग भी नहीं होने देना और इंटरेस्टिंग बनाना. इफेक्टिव जो है हमने वो कम्युनिकेशन करनी होती है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन, आप सर पाकिस्तान का वो तो ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी. हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छे लोगों को सुने भी, लेकिन अपनी राय लाजमी रखें. अपनी राय होगी तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं. अपनी राय के बगैर, अपनी सोच के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. और सिर्फ दूसरों को सुनना भी नहीं है. ये भी बड़ी एक जो है ना पर्सनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जी पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है ना, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं. वो जीतते चले जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं. माशाल्लाह नजर भी ना लगाए उनको. आज तीसरा मैच है. मैं वो यही माशाल्लाह हमजा कहा करो हमेशा, हमारी टीम को नजर नहीं लगनी चाहिए. और आज तीसरा T20 और आखिरी भी मतलब होगा. तो आज भी यही उम्मीद है और यही दुआएं भी होंगी हमारी कि आज भी हम ये है जो 3 सिफर्स जो हम लोग जीत जाएंगे. बिल्कुल जी. इरफान हमारे साथ मौजूद हैं. इरफान ज़हीर, उनको शामिल गुफ्तगू. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. इरफान, आज तीसरा मैच है. पहले तो हमें ये बताएं कि धानी ने खेलना है आज के नहीं खेलना. आपके पास क्या खबर? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने ज़्यादा स्केर्ड थे कि आपको यंगस्टर को चांस देना चाहिए था. ऑल आउट जाना चाहिए था यंगस्टर के साथ और अपने तमाम सीनियर प्रोस को रेस्ट देते. तो मेरा ख्याल है हार जीत को आपको कहीं ना कहीं साइडलाइन करना पड़ता है, थोड़ा पीछे रखना पड़ता है. आप अच्छी वर्ल्ड कप की जर्नी खेल के आए हो, आपने अच्छा खेला है, आप कॉन्फिडेंट तो रहे. अभी 8-9 मंथ के बाद दूसरा वर्ल्ड कप आने के बाद टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में आए. देखिए, मैं अक्सर टीवी चैनल पे बात कर रहा था कि 5 सीरीज कंसेक्टिव ऑस्ट्रेलिया हारी थी. ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बन के चली गई क्योंकि डिफरेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट प्लेयर को ट्राई किया. एंड में जो उनको बेस्ट लगे उनके साथ वो वर्ल्ड कप में उतरे और वर्ल्ड कप लेके चले गए. तो ये आजकल की क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट के अंदर साइंटिफिक हो चुकी है. साइंटिफिक क्या है कि आप अप्रोच चेंज करनी है, आपको इंटेंट चेंज करनी है अपनी. धानी के साथ जाती गई. हैदर अली को मेरा मानना था कि उसको भी डाल देते क्योंकि ऐसे प्लेयर जिनको ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीमों ने नहीं खेला था वो गो फॉर द किल वाली सिचुएशन में जाते और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर सकते थे. बट हमारी वही एक लिमिटेड अप्रोच के साथ हम खेलते हैं कि हमने यही बंदे हैं, यही हैं. जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी मिस्टेक की कि हमने विनिंग स्ट्रीक के साथ जाना है. देखें ना, आपके पास अगर आपके 15 का स्क्वाड है, 3 रिजर्व है, तो इतने लोग लेके जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप वीकर लिंक के साथ कैरी कर रहे हैं. हसन अली को छोटी टीमों ने भी अटैक किया था तो आपको चाहिए था कि एटलीस्ट एक आधी तो अल्टरेशन कर देते. बट वो हमें पता है कि हम इस चीज़ पे नहीं करते. और आज शेब मलिक की खबर आ चुकी है, वो नहीं खेल रहे. वो आज वापस चले जाएंगे दुबई. उनके बेटे की शायद तबीयत ठीक नहीं है. तो क्या इफ्तिखार को चांस मिलता है? इफ्तिखार को लग रहा है कि खिलाया जाएगा. तो मतलब मोस्ट लाइकली आपको करना चाहिए. लग रही है कि तीसरे मैच में चेंजिंग्स होंगी, कुछ चीज़ जरूर करनी चाहिए. मैं तो उसका बड़ा अच्छा, क्या मतलब कि वैसे जरूरत नहीं है सरफराज का? तो हमें सबको पता है. आप देख रहे हैं कि ऐसी भी कोई तब्दीली आ सकती है कि सरफराज को भी चले साथ लेके जा रहे हैं, उनको भी रिजवान की जगह खिला लें, नीचे से भी शायद नवाज की जगह इमाद आ रहे हूँ या उस्मान कादिर आ रहे हूँ. आज नहीं करना तो मैं वही कह रहा हूँ कि मस्त चाहिए, लेकिन इनकी थोड़ी सी ना स्केयर अप्रोच ये है, कोच के हद तक भी, कैप्टन की हद तक भी. इनके अंदर ये है कि खुदा न खास्ता हम कहीं सीरीज हार गए, कोई मैच हार गए तो हमारे पे क्वेश्चन मार्क ना आ जाए. तो वो किसी तरह का भी रिस्क लेने को तैयार नहीं. जिस तरह पीसीबी ने कल जॉब के तो दे दिया लाइक कोच के लिए. तो कोच तो हमें शुरू से मालूम है कि नया कोच आएगा. तो यार आप थोड़ा सा, सुकनैन साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ा ज़बरदस्त विजन रखते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिलेरी भी दिखानी पड़ेगी. बाबर को भी दिलेरी दिखानी पड़ेगी. हमें देखे ना कि हमने ओपनिंग के अंदर कई दफ़ा हमजा कई शोज में बात की कि हमें पावर प्ले के अंदर हमें हिट करेगा. ये बाबर रिजवान नंबर 1 बैट्समैन है लेकिन हमें हिट करेगा. आप देख लें कि वर्ल्ड कप में हिट कर गया ना. 20 स्कोर 25 स्कोर कम थे हमारे. नहीं, वैसे एक तो वैसे आपने क्वेश्चन देना था ड्यू फैक्टर की वजह से 25-30 रन का. दूसरा ये है कि आप पावर प्ले में जब हर मैच के अंदर 30-35 कर रहे हो तो फिर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो स्वाय स्कॉटलैंड के अलावा कि आप आखिरी 10 ओवरों में कुछ 125 मार देंगे. तो ऐसे हर टीम तो नहीं खाती आपसे स्कोर. तो आपको करना यही था कि आप जो मॉडर्न क्रिकेट आ चुकी है, आप पावर प्ले का पहली बॉल से लेके
120 बॉलें होती हैं T20 में, हर बॉल पे आपको ट्राई करनी है। बिल्कुल अब देखें ना, हर मैच में पाकिस्तान के 3 आउट हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, बाकी विकेटों के अब घर ना लेके आना था हाँ, ऐसी है कि आप उसको ट्राई करते, ऑल आउट जाते। दोनों सेमीफाइनल में यही ब्लंडर हुआ, फाइनल भी हो, मैं अभी तक इस चीज से बाहर नहीं आ सका। लग रहा है, नजर आ रहा है, सब सारे देख रहे हैं। उस स्मेल से वापस ही नहीं आए। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग जो है ना उसी स्मेल में अभी तक है कि हम अगर वो सेमीफाइनल हम जी जाते मैं तो हमारी कॉफी उसमें इतना नहीं हूँ, मैं इस अप्रोच से बाहर नहीं आ सका। देखिए वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर ना छक्के लग भी जाते हैं, कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन बैटिंग करने से किसने रोका आपको? इंग्लैंड को किसने रोका था बैटिंग करने से? पाकिस्तान को किसने रोका था बैटिंग करने से? न्यूजीलैंड को फाइनल में किसने कहा था 7 ओवर नहीं बाउंड्री मारनी? ये मैं इस समय से बिल्कुल बियॉन्ड है मेरी से कि ये क्या क्रिकेट हो रही है, कि किस तरह की अप्रोच के साथ खेला जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा है ये इंटेंट के कुछ भी ऊपर। बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छा, अब अगर हम देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो हमारा वो टेस्ट सीरीज का भी आगाज हो रहा है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए? देखिए पहले तो T20 भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से बांग्लादेश कोई सीरीज नहीं आ रही थी हाँ जी, अपने होम ग्राउंड के। तो हमने पहली टीम है बेहतरीन दुनिया की पिचेस बना के और फंसा देते थे सबको, बल्कि गिरा देते थे। तो टेस्ट के अंदर भी इतनी इंपॉर्टेंस है। आल्दो के टेस्ट के अंदर हमारा स्क्वाड ज्यादा एक यूनिफाइड है, हमें पता है कि यही लड़के खेलेंगे। कल मैंने इंटरव्यू भी किया था अबद अली का भी, उनके साथ एक ही हमें चेंजिंग नजर आ रही है कि ओपनर साथ चेंज होगा, अब्दुल्ला शफीक या मामूल हक होंगे कोई। तो कहने का मकसद ये है कि टेस्ट हमारी फिर भी एक सीक्वेंस टेस्ट में उनके चांसेस बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि उनके भी कुछ मेन प्लेयर अभी नहीं है, और टेस्ट की टीम अभी उस तरह उनकी बड़े फॉर्मेट पे वो नहीं खेल पाते, छोटे फॉर्मेट में वो फंसाते हैं। अच्छा इरफान, सबसे अहम चीज़ आप बेहतर समझते हैं, आप राब्ते में भी रहते हैं, क्या पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम है वन यूनिट बन के हमें नज़र आ रहा है? ऐसा माहौल आपने कितने अरसे बाद वैसे देखा है? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बड़े वन यूनिट बन के कप्तान नज़र आ रहा है, टीम कप्तान की नज़र आ रही है, ये कितनी खुशाइंद है। और कितने अरसे बाद पाकिस्तान ये अचीव करने में कामयाब हुआ? कितने कप्तान तो हमने खुद उतारे हैं खिलाड़ियों ने। ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चैंपियन ट्रॉफी के बाद हमें ये एनवायरनमेंट नज़र नहीं आया। चैंपियन ट्रॉफी के बाद 3-4 साल के बाद ऐसा एनवायरनमेंट नज़र आया कि लड़के खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्केयर एलिमेंट नज़र नहीं आया। सबसे बड़ा क्रेडिट तो ऑब्वियसली इस्लाम मुश्ताक को जाता है कि जिस तरह इस पिछली मैनेजमेंट के ऊपर से आमिर ने बात की और 5-6 प्लेयर ने बात की कि वो बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, उन्होंने मुलाजम करके बना के रखा हुआ है कि यस सर वाले बेंड करके रहना आपने। वो जैसे ही मैनेजमेंट की तो हमें नजर आया कि बाबर को भी लिवरेज दी गई कि तुम कैप्टन हो और तुम अपने डिसीजन कर सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आया। तो लेकिन सिर्फ एक चीज है कि बाबर को अब अपने डिसीजन बड़े लेने पड़ेंगे। बाबर अगर इसी तरह थोड़ा सा लिमिटेड या रिजर्व अप्रोच के साथ रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा, तो इसको डेंट करेगी। अच्छा वैसे इरफान 30 सेकंड्स हैं, आपने सेमीफाइनल में शाहीन के साथ दूसरे एंड पे आमिर को मिस किया था। 100% आमिर और वहाब दोनों को बहुत मिस किया बस था। यही चीज़ है कि हमने और मैंने मोहम्मद आमिर से स्पेशल उसके बाद फोन करके कहा कि खुदारा अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले। अगला वर्ल्ड कप 3 है हमारे सर पे का। इरफान बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान से कर रहे थे जी। आज तीसरा मैच है T20 का, उम्मीद करते हैं क्लीन स्वीप ही होगा, लेकिन नए खिलाड़ी खेल रहे होंगे, धानी लाजमी तौर पर खेल रहे होंगे, हम उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं। प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।